હવે ચેટ જીપીટી આવ્યું. જીપીટી કે જીપીટી. મારું બેટું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલું જબરજસ્ત પાવરફુલ છે કે આમ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ્સમાં તમારે જે જાણવું હોય, તમારે જે કામ કરાવવું હોય એ કરી આપે. બોલો, તમારા ફોનમાં સીરી હરવાર ફ્રી આવે, सेक्रेटरी. और अब तो इंटरनेट का जमाना है और कुछ भी जानना है तो तुरंत हम गूगल कर लेते हैं. है तो कंपनी और नाउन भी है और वर्ब भी हो गया, क्रियापद बन गया, गूगल इट. कुछ भी जानना हो गूगलम शरणम व्रज. આવું બોલીને હું ગૂગલનું માર્કેટિંગ નથી કરતો. અને વિદેશોમાં તો હું જાઉં તો ઘરમાં ઓલી કે એલેક્સા હોય છે, મશીન, અને એલેક્સા બધું સાંભળતી જ હોય છે. પણ તમે એને જ્યારે કોઈ કામ ચીંધો, ઘરની કામવાળી કોઈ બહેન હોય, કામ કરતી હોય ઘરમાં કોઈ બહેન, તો એ તમે કામ ચીંધો એટલે એ તરત તમારું ચીંધેલું કામ કરે. બાકી તમે જે કંઈ બોલતા હોય, સાંભળતી હોય, કારણ કે તમારા ઘરમાં જ છે. તમે જે કરતા હોય એ જોતી હોય, પણ જવાબ ત્યારે આપે જ્યારે તમે એને બોલાવો ને કંઈ કામ ચીધો. ગોમતી, હા મેડમ. સાહેબના કપડા ઇસ્ત્રી કરી લીધા? બસ મેડમ, કરું જ છું. તમે પૂછો તો જવાબ આપે ગોમતી, નહીં તો એના કાન અને આંખું તો ખુલ્લા જ છે. એમ ઓલી એલેક્સા તમે પૂછો કે એલેક્સા આજનું ટેમ્પરેચર શું છે બેન, એટલે એલેક્સા તરત બતાવી દે. આવતીકાલે વરસાદ થવાનો છે એલેક્સા, એટલે એલેક્સા તરત બતાવી દે. પણ તમે એલેક્સાને ન પૂછો તો એલેક્સા બધું સાંભળતી હોય, એટલે કે મશીન છે એ સાંભળે છે બધું. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. એક ઠેકાણે તો પતિ પત્ની બે બાંધ્યા, રોજ ઝઘડા થાય, 7 દી સુધી લગાતાર બાંધ્યા. તો એલેક્સા પછી કહેવા માંડી કે આટલા વકીલ છે છૂટાછેડાના, આ સરનામા છે અને આટલા ટકામાં કેસ લડી આપે છે. આખું બધું માર્કેટિંગ છે. તમે ક્યાં જાઓ છો, તમે શું કરો છો, તમે કોની હારે વાત કરો, કોની હારે કેટલી વાત કરી, હું વાત કરી, બધી ખબર છે. હવે પ્રાઇવસી જેવી કોઈ વાત જ નથી દુનિયામાં. तुम घेर लिए गए हो चारों ओर से इस टेक्नोलॉजी के चलते. तो सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर, लेकिन इंटरनेट पर जानकारी तो तुम्हें मिल जाएगी. और जानकारी ज्ञान नहीं हुआ करती प्यारे. जानकारी में और ज्ञान में अंतर है. नॉलेज और विजडम में, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, अंतर है. तो उसके लिए तो सत्संग की बहुत आवश्यकता है. अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे पुनः एक बार युवा सत्संग में बैठ रहे हैं, ये बातें जान समझ रहे हैं. हमारे यजमान परिवार के भी सब युवा बेटे बेटियां पूरे मन से कथा का श्रवण कर रहे हैं. समझना चाहिए कि क्या मतलब है इसका, कि ब्रह्मा के नाक के नथुने से वराह भगवान प्रकट हो जाए. प्रश्न उठना चाहिए कि ये हिंदू देवी देवता इतने विचित्र रूप वाले क्यों हैं? दत्तात्रेय के 3 मस्तक,
ब्रह्मा के 4, महादेव के 5, महादेव के बेटे कार्तिकेय के 6 षडानन, और महादेव का चेला दशानन 10 मस्तक। મને તો વિચાર થાય 10 માથા વાળો રાવણ એને જ્યારે બેતાળા આવે ચશ્મા બનાવવાના થાય તો એ કેવી રીતના બનાવવામાં, એ ચશ્માને રાખવાનું ઘરું એને સ્પેશિયલી ડિઝાઇન કરવું પડે, અને ચશ્માની આમ લેન્થ કેટલી બધી હશે, અને રાવણને માથા 10, કાન કેટલા હશે, આ બાજુના માથાનો આ બાજુનો કાન અને આ બાજુના માથાનો આ બાજુનો કાન, એ તો હોય જ. એ સિવાય જ્યાં માથા બધા જોઈન્ટ્સ થાય, આમ જોઈન્ટ થાય ત્યાં કાન હશે, અને તો પછી આ માથાનો કાન અને આ માથાનો કાન, 2 નંબરના માથાનો 1 નંબરના માથાનો આ બાજુનો કાન અને 2 નંબરના માથાનો ડાબો કાન, એ બે આમ ચોંટી ન જાય. અને ચશ્મા હોય તો પાછા ન્યાય ઓલી ફ્રેમ ભરાવવાની કે નહીં ભરાવવા, તો હું આ બાજુ જ ફ્રેમ ને આ બાજુ જ ફ્રેમ ને વચ્ચે આમ લાંબી લાઈન કાચની, અને પછી અને એમ લાગ્યા કરે છે ભલે માથા 10 હશે પણ કાન 20 નહીં હોય રાવણને, 2 જ હશે. કેમ? કોઈનું સાંભળતો નહોતું. अपने सचिव माल्यवन की नहीं सुनी, अपने भाई विभीषण की नहीं सुनी, अंगद आया था समझाने नहीं सुनी, हनुमान जी ने समझाया नहीं सुनी, घर की बीवी ने समझाया नहीं सुनी, किसी की सुनता ही नहीं था. पंडित था बड़ा जबरदस्त, लेकिन बहुश्रुत नहीं था. ઘણીવાર ચોપડીઓ વાંચી વાંચી વાંચીને જે આપણે પંડિત થઈ જઈએ ને, અને અત્યારે સોરી ટુ સે પણ અત્યારે આવું થઈ રહ્યું છે. ચોપડીઓ વાંચીને ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી માણસ ડૉક્ટરને મળવા જાય ને તો એ બીમારી વિશે, એ ડૉક્ટર વિશે બધું જ ગૂગલ કરી, ઇન્ટરનેટ ઉપર બધું જોઈ, અને પછી ડૉક્ટરને જ્યારે મળે ત્યારે ડૉક્ટરને બતાવવાની કોશિશ કરે કે મને આટલી બધી ખબર છે. અને એટલા માટે પછી જે દલીલો કરતા મેં સાંભળ્યું છે ડૉક્ટરો પાસેથી, ડૉક્ટરો એવા લોકોથી બહુ કંટાળે. આવું જે અર્ધું જ્ઞાન છે ને, એટલે એ તો બિચારા પછી ડૉક્ટરે આમે એણે ધંધો લઈને બેઠા છે, અને થોડા ભણેલા ગણેલા એટલે કંઈ બોલે નહીં, પણ ભાઈ તું અમે કહીએ એમ કર ને બાપા, તારે હાજુ થવું હોય, હું કામ આટલી માથાકૂટ કર. ગૂગલ કરીને આપણે જઈએ એટલે એટલું બધું. केवल पुस्तक पढ़ करके, केवल इंटरनेट पे सारी जानकारी प्राप्त करके वो आप इंफॉर्मेशंस इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं है. ज्ञान तो सदगुरु विना शक्य नहीं. बिन गुरु होई की ज्ञान, और ज्ञान की होई विराग बिनु, गावही वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिनु. तो इसलिए परोक्ष प्रिय ऋषियों ने इन पात्रों को ऐसा बनाया कि रावण 10 माथा वाला, षडानन कार्तिकेय भगवान के 6, महादेव के 5, ब्रह्मा के 4, दत्तात्रेय के 3, पराम्बा भगवती दुर्गा अष्टभुजा, 8 भुजा.
यही श्री कृष्ण हमारे आराध्य व्रज में होते हैं, लीला करते हैं तो द्विभुज, और यहां द्वारका में विराजते हैं तो चतुर्भुज। क्यों? आ उखाणा छे, पौराणिक उखाणाओ। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? अंग्रेजी में क्या रिडल्स कहते हैं इसको? और हमारे यहां बच्चों में बचपन से ही इस प्रकार की आदत डाली जाती है। वो प्रश्न पूछते हैं कि पूछो, बताओ इसका ऐसा क्यों है। दिमागी व्यायाम आवश्यक है, तो मन से सुनो लेकिन बुद्धि भी लगाओ। ये नहीं कि बुद्धि को घर छोड़ के आओ। इसलिए इस प्रकार की बात है। इसलिए इसका रहस्य समझने के लिए सद्गुरु के पास जाना पड़ता है और श्रद्धा पूर्वक इस ग्रंथ के प्रति आदर, ग्रंथ के विषय में आदर, सद्गुरु के प्रति आदर यानी वक्ता के प्रति आदर, गुरु वाक्य में विश्वास, ये सब बातें सत्संग में अनिवार्य है। इसलिए तो कथा कथा है भाई। ये सत्संग, ये कोई स्कूल या कॉलेज में जिस प्रकार से शिक्षा दिया जाता है वो भी जरूरी है, लेकिन वो ढंग अलग है, उसका हेतु अलग है, वो अपरा विद्या है। यहां जो दिया जाता है वो परा विद्या है। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा अपरा च, दोनों विद्या को जानना चाहिए, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या जो संसार से संबंधित बातों को सिखाती है कि तुम्हें डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, इंजीनियर बना दिया, तुम अपने करियर को आगे बढ़ाते हो, पैसा कमाते हो, सांसारिक, व्यावहारिक या व्यावसायिक जीवन में सफलता पाते हो। लेकिन परा विद्या ये अध्यात्म विद्या है, ये मुक्ति प्रदाता है। सा विद्या या विमुक्त है। गीता परा विद्या, गीता में परमा विद्या, ब्रह्म रूपान संशय। तो यहां परा विद्या की बात है कथा में, सत्संग में। इसलिए हम ग्रंथ की पूजा करते हैं। हम इस श्रद्धा से बैठते हैं कि यह ग्रंथ नहीं, यह साक्षात गोविंद है। भगवान द्वारकानाथ प्रभु का ही यह साक्षात वांग्मय स्वरूप है। इसलिए पूजा करते हैं, इसलिए भोग लग, नहीं तो बुक ने कोई भोग लगाड़े। जो केवल बुद्धि प्रामाण्यवादी है, नॉन बिलीवर्स है, वो हंसते हैं। कमाल है, हिंदू लोग बड़ी वाली बुक रखते हैं, गंधाक्षत पुष्प फूल की माला भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं। हम एक श्रद्धा से बैठते हैं कि ये केवल एक ग्रंथ नहीं, एक पुस्तक नहीं, ये साक्षात परमेश्वर, ग्रंथ नहीं गोविंद है। मूर्ति पूजा में जो नहीं मानते उनको लगता है कि पत्थर की पूजा कर रहे हैं। और फिर हमारे तो संतों ने भी गाया कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थर को पूजने से हरि मिलते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है, तो मैं छोटा पत्थर क्यों, पूरा पहाड़ पूजूं।
लेकिन हमारी श्रद्धा ये कहती है, बात तो सही है आपकी महाप्रभु, कि यदि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, लेकिन पत्थर पूजे वो, हम लोग पत्थर नहीं पूजते, हम पत्थर तो मूर्ति तो केवल माध्यम है, हम पूजा उस परमात्मा की करते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्वत्र है, जो व्यापक है, हर कण में हर क्षण में है। बोले फिर मूर्ति पूजा क्यों करते हो? तो बोले क्यों ना करें, जो कण कण में है वो मूर्ति में भी है, लेकिन तुम्हें मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ी? बोले भैया मन चंचल है, उसको बांधने के लिए। हमारे कृष्ण कन्हैयालाल भी भगवत गीता में समझाते हैं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् तेषाम अधिकतरः क्लेशः। किनके लिए? बोले अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो निराकार में मन लगाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कई धर्म हैं जो उस ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन वो निराकार ही है, ऐसी उनकी समझ है। उस समझ को भी प्रणाम, वो समझ गलत नहीं है, लेकिन वो निराकार ही है, ये समझ गलत है। हम कहते हैं वो निराकार भी है, लेकिन वो निराकार ही नहीं है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, तुलसीदास जी कहते हैं निर्गुण सगुण, निराकार साकार, दोनों रूप उसी परमात्मा के हैं। तुम उसको किसी एक में बांधकर नहीं रख सकते। महादेव की स्तुति करते हुए पुष्पदंत ने जो कहा है, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता। पुष्पदंत कहते हैं भगवान शिव से, तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। हे महेश्वर, मैं आपके तत्व को नहीं जानता, आपके स्वरूप को नहीं जानता कि आपका स्वरूप कैसा है, लेकिन यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। महादेव आप जैसे भी हैं, आपको नमन। एक जगह मैंने एक वाक्य पढ़ा था विदेश में प्रवास में कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे पढ़ लेता हूं, फिर वो दिमाग में बैठ जाता। लिखा था, डो नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी। मुझे लगता है कि हमारे कन्हैया लाल भी मुस्कुराते हुए यही कहते हैं, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी, दैट्स इनफ। मीरा कौन सी यूनिवर्सिटी में गई थी? नरसिंह मेहता ने कहां से पीएचडी किया था? शबरी कितना पढ़ी लिखी थी? लेकिन वे अमर हो गए, उन सबको भगवान मिले, भगवान की अनुभूति हुई। शबरी तो कहती है, मैं तो मतिमंद, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति
नमः मैं मति मंद अघारी केहि विधिया स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी